let us start the session now. So we have to go for innovative practices, and agriculture is not one subject. Basically, we have to manage all natural resources. And if we manage the natural resources, then we can go for this agriculture in a systematic manner. And for such thing, particularly in the dry areas, we have to manage forest and water together with agriculture. Then only it will lead to sustainable agriculture practices. And technology is required. There is no doubt about it. So various kind of techniques and technologies are the need of the hour, and we have to go for the vertical farming or intensive farming, relay cropping along with the organic, and we have to sort out the kind of seeds which can run with organic, and we have to find out the mechanism, because these days the seeds are also not available and the farmers are more and more dependent on HYV seeds, and there is no harm doing the organic cultivation along with the HYV seeds and the new variety of crops. But only thing is that we have to check the result whether it is conducive to that particular system or not. My dear friends, let us take an example from the conventional agriculture and conventional dairy farming. I found a person, Mr. Harchand Singh, near to Chunni. There is a village at Graon, and he has a Kamaljeet dairy farm. So I met him in 2001 or 2. He was a young farmer. He learned some techniques of artificial insemination from PAU Ludhiana, and after that he has opened a dairy farm. So a small dairy farm initially with 25 cows. Later on it was converted into a 100 animal dairy farm, and he brought all the HF breed and Jersey breed of cows for the dairy production, milk production. And after a successful running this unit for 5 years, then he also introduced piggery, and he experimented this piggery also. So he learned from all such things and earned a good amount of money. And later on he went to Georgia along with another farmer where he invested about 90 lakhs of rupees. And in 2-3 years he multiplied this money through piggery farm at Georgia, and he earned a lot of money. Maybe 2-3 crores of rupees money he earned, and later on he constructed a very good house at his village, maybe investing about 1.5 crores. So you can know. So my point is here that if you are innovative, enterprising, then there is a chance that you can multiply the business, and that startup is available in our countryside. हमारे गांव में ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, बशर्ते कि हम उसको क्लिक करें और उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें. जैसे कि हरचंद सिंह जी ने एक डेयरी फार्म के अलावा पिगरी को भी एक्सपेरिमेंट किया, और जॉर्जिया जाकर इन्होंने 3-4 सालों में करोड़ों रुपए कमाए, और एक सक्सेसफुल यहाँ के मॉडल से सीखने के बाद यही काम उन्होंने बाहर किया, and it was replicated outside and he earned a lot of money. Similarly, we have to find out all groups of the people. Recently I met a farmer, his name is Rajinder Singh Malwa, and with the help of KVK Ropar I met this person. Then this person is having the bee boxes, और इनके पास पहले 4 बॉक्सेस से इन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू किया आज से 15-20 साल पहले, और इनके पास अभी 400 बॉक्सें हैं. And he is a very innovative farmer, and otherwise he was a electrician by trade. इन्होंने इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे 20-25 साल. इनके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, तो इन्होंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया, और इनकी अर्निंग लगभग 7-8 लाख रुपए साल की है. और ये बड़े इनोवेटिव फार्मर हैं. इन्होंने एक बक्से से लगभग 100 केजी तक शहद निकाला है, और इनका कहना है कि सही मैकेनिज्म से अगर ये बी कीपिंग की जाए तो इसमें भी काफी अच्छा फायदा है. तो बहुत सारे फार्मर मुझे पंजाब और हरियाणा में मिले जो कि इस तरह के छोटे छोटे धंधों से अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं, एंड दे हैव लर्नड दिस थिंग्स. थोड़ा मेहनत का काम है ये बी कीपिंग, और लेकिन इसमें फायदा अच्छा है.
तो इस तरह के काम को भी अपनाकर कुछ छोटे फार्मर आगे आ सकते हैं और इस तरह के सक्सेस स्टोरीज पूरे कंट्री भर में आपको मिलेंगे। मेरा मानना है कि पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे नेचुरल वे में इसको करने के बहुत सारे तथ्य उपलब्ध हैं। So we have to go for integrated farming, which is ecologically viable, ecologically sound and economically viable. हमें 3-4 सहायक धंधे एक दूसरे से जुड़े हुए खोजने चाहिए और अपने फैमिली के हिसाब से या जो आप मैनेज कर सकते हैं उतने हिसाब से उसका एक मिक्स तैयार करना चाहिए. Then our system will become viable and it will lead to zero waste management system and natural way of doing things. Like मुझे एक जगह ये बात नजर आई कि उन्होंने डेयरी फार्मिंग की, उसके साथ साथ एक बायोगैस प्लांट लगाया, दो बायोगैस प्लांट. उसमें से जो स्लरी निकल रही थी उसको एक तालाब में छोड़ दिया और उससे मछलियां पालन कर रहे थे. तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया इन्होंने. एक सिस्टम का जो वेस्ट निकल रहा है, मान लीजिए बायोगैस की स्लरी निकली, इस स्लरी के पार्ट ऑफ द स्लरी इज बीइंग गिवन टू द फिश इन द पॉन्ड, और ये पॉन्ड आपके एनिमल को नहाने के काम में भी आ रहा है. और कुछ वेस्ट जो मान लीजिए इससे फीड, जो आप काउ सेट से जो फीड आ रही है उसके कुछ पार्ट को आप पिगरी में उसको दे दीजिए, हालांकि इनकी फीड थोड़ी अलग होगी, तो पिगरी में दे दीजिए. फिर इससे जो आपको धन प्राप्त होता है, तो इन सभी चीजों को मल्टीप्लाई करिए और there is no waste in the nature as far as organic waste is concerned. All such waste may be recycled either through vermicomposting or either through this biogas mechanism. So there is a possible chance that we can create a zero waste management system and better recycling system in the countryside. ये एक बहुत बड़ी हमें चीज नजर आती है जिस पर हमें लोगों को शिक्षा देनी चाहिए कि भाई ऐसा मॉडल खड़ा करो, एक ऑप्टिमम मिक्स बनाओ अपने फार्म का. कितने एनिमल्स रखने हैं, कितने में खेती करनी है, कितने में दूसरे सहायक धंधे उसके साथ जोड़ने हैं. तो ये एक हमें नजर आता है. हिंदुस्तान काफी अच्छा काम कर रहा है एग्रीकल्चर में कि वर्ल्ड आउटपुट अगर $1 बिलियन में देखा जाए एग्रीकल्चर में तो $4,771 बिलियन है. इंडिया का आउटपुट जो है 367 है और इंडिया का जो शेयर है 8वां नंबर है, और इसका रैंक जो है हिंदुस्तान का पूरे विश्व भर में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 2 नंबर पर है. सर्विस सेक्टर में हमारा जो शेयर है वो कम है क्योंकि दूसरे मुल्कों में सर्विस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ है, हमारे में कम है क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं. फिर भी सर्विस सेक्टर में यहाँ पर काफी लोगों को जॉब मिलता है. सो हमारा जो आउटपुट है $1185 बिलियन का है. इन कंपैरिजन अबाउट $50,000 बिलियन का टोटल वर्ल्ड मार्केट है, वर्ल्ड शेयर है, और इंडिया शेयर इसमें सेकंड है और रैंक जो हमारा 11th है. इंडस्ट्री के केस में टोटल वर्ल्ड का जो शेयर है वो $23,857 बिलियन का है और इंडिया का जो शेयर है 496 का है. सो ये फिगर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया गया था. इसके बाद इंडिया जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है इंडिया का, वो $367 बिलियन का है. USA $279 बिलियन, ब्राजील $130 बिलियन, and Nigeria is also a tropical country in Africa. So this figure also suggests that we are only lagging behind in comparison to China because China is trying to do all better experiment in all the sectors. So China is the main competitor. So we have to think that how we can compete with the states like China or the country like China. यहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात है, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अब 270-280 मिलियन टन तक पहुंचा दिया हमने. इसमें लेग्यूम्स हमारे अभी भी कम है, लेग्यूम्स की उत्पादन कम हो गया है जिसमें कि लगभग 22 मिलियन टन हम पैदा कर पा रहे हैं, जबकि इसकी जरूरत और भी ज्यादा है. लेग्यूम्स की कमी है हमारे देश में. तो एग्रीकल्चर से हमें लगभग 245 यूनाइटेड स्टेट डॉलर का GDP में कंट्रीब्यूशन है. सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इज स्टिल कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट और इसमें ग्रोथ
एग्रीकल्चर की अच्छी है, एंड वी हैव, इट इज अ प्राइमरी सोर्स फॉर द लाइवलीहुड अबाउट 58% पॉपुलेशन में भी नेट, जो कम से कम 35% लोग इसमें पूरे नेट तरीके से इस पर निर्भर करते होंगे, 35 से 40, हालांकि 58-60% लोग इस पर निर्भर करते हैं, लेकिन बाकी के समय में वो माइग्रेट कर जाते हैं। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी पूरे देश में 17-18% जो है हमारे जीडीपी का एग्रीकल्चर से आता है। और अगर वर्कर्स देखिए एग्रीकल्चर के फील्ड में, 1991 में 10 करोड़ वर्कर्स इस फील्ड में काम करते थे, लेकिन 2011 की सेंसस के हिसाब से लगभग 26 करोड़ वर्कर्स एग्रीकल्चर से रोजगार प्राप्त करते हैं, जबकि जो डेवलप्ड नेशन है वहां पे 3 या 4% लोग ही पूरे फार्म को मैनेज करते हैं, वो सारा मैकेनाइज्ड है उनका, क्योंकि यूएस में जैसे कि केवल 25 लाख लोग ही एग्रीकल्चर में काम करते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम ही बिल्कुल भिन्न है। सो ये सारी चीजें हमें नजर आती है कि एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये नजर आ रहा है कि हर एक साल में लगभग 5% लोग एग्रीकल्चर को छोड़कर दूसरे काम में जा रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरी भरपाई कर नहीं पा रहा है। और एग्रीकल्चर many a time it is not a profitable business and that's why the people are discouraged. हमारे फार्मर्स भी उससे डिस्करेज हो रहे हैं। हमारे जो मार्केट साइज है उसमें जो हमारा पोटेंशियल एरिया है जिसमें कि हम ऑर्गेनिक उसमें जा भी सकते हैं, स्पाइसेस में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, हॉर्टिकल्चर को अगर हम ठीक ढंग से ऑर्गेनिक कर लें, और काफी तक जो एनिमल प्रोडक्शन है उसको भी हम क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उनकी फीड मटेरियल और उसको भी ऑर्गेनिक करने की कोशिश करें, तो ये 3 क्षेत्रों से ही हमें एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मिल सकता है। और इस क्षेत्र को ही हमें प्राइमरली फोकस करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अदर थिंग्स। एंड इसमें अगर स्पाइसेस भी हम नेचुरली ग्रो कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो जो हमारे नेचुरली हो सकता है उसको हमें आगे बढ़ाने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, जिसका हमें मार्केट उपलब्ध है। बासमती राइस का भी हमें मार्केट है, लेकिन अगर उसको हम ऑर्गेनिक ब्रांड करके इन फ्यूचर में उसको प्रमोट करें, so that will fetch a better market in the outside world, क्योंकि बासमती तो अभी जा रहा है हमारा, लेकिन अगर उसमें ब्रांड ऑर्गेनिक का आता है, so that will give us a new impetus. और यहाँ कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा नहीं मान सकते हैं। अभी हमें कुछ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ में एग्रीकल्चर में काम करना पड़ेगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा भी है कई क्षेत्रों में अगर हम अच्छा कुछ कर पाते हैं। सो बिकॉज वी आर ओपन मार्केट नाउ, सो वी हैव टू इनवाइट सच फॉरेन एक्सपेरिमेंट। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो पूरा मूवमेंट है वर्ल्ड ओवर, उसके प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक स्टेटिस्टिक्स है जो कि बताता है कि वर्ल्ड ओवर 186 कंट्रीज में छोटे या बड़े पैमाने पे ऑर्गेनिक का काम जरूर होता है, और लगभग 80 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है आज की तारीख में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में है। और ऑर्गेनिक शेयर टू द टोटल एग्रीकल्चर लैंड केवल 1.5% ही एग्रीकल्चर में डिवोटेड है। कुछ जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जहां पर ये ज्यादातर ऑर्गेनिक होता है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, सामोआ और इस तरह की छोटी कंट्रीज हैं। और बड़े जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया में काफी बड़ा हिस्सा ऑर्गेनिक का है, अर्जेंटीना में है, चाइना में है। सो जो प्रोड्यूसर्स हैं लगभग 2.8 मिलियन है, कुछ अभी 3.7 मिलियन का एक नया फिगर आ गया है। एंड ऑर्गेनिक मार्केट काफी बड़ा है, ऑर्गेनिक मार्केट काफी बड़ा है, उसको दोबारा भी देखेंगे। और पर कैपिटा कंजम्पशन कुछ ही कंट्रीज में अच्छा है, जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन। दे आर devoting more money for the purchase of organic food materials, and उनका जो फूड कंजम्पशन है पर कैपिटा सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और स्वीडन में पाया जाता है। बाकी कंट्रीज में उतना अभी ऑर्गेनिक के लिए ज्यादा लोग नहीं चाह रहे। ये हमारा मार्केट है। एज पर द रिसेंट स्टेटिस्टिक्स,
$96.1 बिलियन का मार्केट 2020 में पाया गया। इन स्पाइट ऑफ द पैंडेमिक आने के बाद में कुछ इसमें कमी आई, लेकिन बाद के दिनों में जब लोग बीमार होने लगे वर्ल्ड ओवर, फिर दोबारा से इस ऑर्गेनिक फूड की मार्केट बढ़ गई और ये माना जा रहा है कि लगभग 2027 तक ये मार्केट लगभग 9.8% के रेट से ग्रो करेगा और ये मार्केट जो 183.8 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। सो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ अबाउट 10% पर एनम। सो दैट इज अ बिग ग्रोथ एट द इंटरनेशनल लेवल। अगर इतना बड़ा ग्रोथ है तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड ग्लोबल ऑर्गेनिक फूड एंड बेवरेजेस मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन अ वेरी वेरी गुड मैनर। सो बेवरेजेस भी जो चाहिए वर्ल्ड मार्केट को, वो एक सेगमेंट है जिसमें कि हमारे लोग इसमें कम काम किया करते हैं और हमारे पास वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है टू ग्रो अ न्यू ब्रांड और न्यू काइंड ऑफ बेवरेजेस। इसको हमें सीखना चाहिए, कुछ हमारे फार्मर्स इसमें आगे आ सकते हैं। सो पैंडेमिक के अलावा भी लगभग 120 बिलियन यूरो का मार्केट 2020 में पाया गया और इट वाज अ टोटल इंक्रीज ऑफ 14 बिलियन यूरोज। तो ये मार्केट का ट्रेंड नजर आ रहा है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू बी द लीडिंग मार्केट विथ 49.5 बिलियन यूरोज। इसके बाद फॉलोड बाय जर्मनी एंड फ्रांस। तो यूनाइटेड स्टेट्स में ज्यादा लोग ऑर्गेनिक फूड खरीदते हैं, उसके बाद जर्मनी में काफी लोग इसको इस्तेमाल में लाते हैं और फ्रांस में 13 बिलियन यूरो का मार्केट उपलब्ध था। 2020 में इन मेनी मार्केट showed extraordinary strong growth rates. German market, for example, grew by more than 22%. So जर्मनी में इसकी डिमांड 22% की देखी गई और पर कैपिटा कंजम्पशन की बात है तो सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड के लोग पर कैपिटा 418 यूरो एक साल में खर्चा करते हैं और डेनमार्क के लोग इसके बाद नंबर 2 पे, उनके 13% जो फूड मार्केट है डेनमार्क का वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में काफी बड़ा मार्केट है और ये 35% मार्केट का रेवेन्यू इस क्षेत्र से आता है। और मीट, फिश एंड पोल्ट्री, जैसे मैं बता रहा था कि इसमें ऑर्गेनिक की डिमांड बढ़ रही है एंड दिस इज अनदर बिग एरिया। देन नॉन डेयरी बेवरेजेस लाइक सोय, rice, oat beverages accounted about 38% of the total organic beverages market revenue. So मैं ये जो फील्ड है बेवरेजेस का, जिसमें कि हमारे फार्मर्स अभी ट्रेंड नहीं है, तो हमारे जो फूड एक्सपर्ट हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, they can contribute and bring some of the farmers in this direction. इसमें प्रोसेसिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल कॉफी, टी और इस तरह का जो मार्केट है उसको भी हमें अच्छा करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हमारे आसाम के जो टी गार्डन हैं, क्योंकि आपको पता है टी गार्डन में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उस पत्तों को बचाने के लिए लगातार पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम जो चाय पीते हैं, आप अगर देखेंगे उस टी गार्डन के इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग को, कितना उन्होंने टॉक्सिक चीजें इस्तेमाल करते हैं उस पत्तों को बचाने के लिए, उस पौधों को बचाने के लिए, तो आप बहुत अचरज में रहेंगे। और कुछ लोगों ने इसमें ऑर्गेनिक टी के लिए उसको ब्रांडिंग नहीं करने की कोशिश की है। सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट एरिया वेयर वी हैव सम पोटेंशियल इन असम, इन नीलगिरी एंड अदर प्लेसेस। तो अमेरिकन मार्केट एक बड़ा मार्केट है, इसके अलावा जापान और एशिया का भी मार्केट ग्रो कर रहा है काफी तेजी से, और इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चाइना इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू ग्रो। चाइना भी इस फील्ड में आगे है, वो कंपटीटर है हमारा, ऑर्गेनिक में भी हम उससे हमें compete करना पड़ेगा। तो बेवरेजेस का मार्केट काफी एक इम्पोर्टेंट फील्ड मुझे लगता है, जिसमें कि हमारे लोगों को, फूड टेक्नोलॉजिस्ट को अपना हिस्सा, अपना रोल अदा करना चाहिए। तो ग्लोबल प्लेयर्स इसमें है, मार्केटिंग प्लेयर्स world over. Even some company like Dow Chemical Company, they are coming in the organic. Here in our country also, आपने देखा होगा Fab India, Reliance, Tata, they are coming
under this organic marketing, and there is a good chance that it may be promoted through such group, and that's why they are coming in a large number, and all the big players are coming in organic food marketing etc. So हिंदुस्तान में ज्यादातर ये जो मार्केटिंग एक्सपोर्ट का काम हो रहा है हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा हो रहा है। जैसे मान लीजिए ग्रेप्स है, हमारे नासिक में ग्रेप्स ग्रो करते हैं, वहाँ के ऑर्गेनिक ग्रेप ग्रोथ सोसाइटी, वहाँ के जो सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव है, वो कुछ ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट भी करती हैं। उसी तरह से हमारे दूसरे फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं हिंदुस्तान से। तो 180 कंट्रीज में लगभग हमारा जो एरिया है आज की तारीख में, देयर आर 3.4 बिलियन ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर्स। 34 लाख खाली लोग पूरे वर्ल्ड भर में ऑर्गेनिक खेती करते हैं एज पर द डेटा, and it is increasing at the rate of 7.6% in comparison to 2019। तो ये recent जो डेटा है, और हिंदुस्तान में 1.6 मिलियन प्रोड्यूसर यानी 16 लाख ऑर्गेनिक फार्मर है। 75 मिलियन हेक्टेयर्स में पूरे तरह से ऑर्गेनिक किया जा रहा है, और ज्यादा एरिया ऑस्ट्रेलिया में 36 मिलियन हेक्टेयर का है, followed by अर्जेंटीना 4.5 मिलियन हेक्टेयर एंड उरुग्वे। तो ये ज्यादातर जो लैंड है इनके, आपको पता होगा कि सारे ग्रास लैंड है जहाँ पे वो लोग ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग करते हैं, और ये ग्रास लैंड में ज्यादातर ये एनिमल फार्मिंग ही करते हैं। So organic area increased all across the world in 2020, and ओसेनिया एक छोटा कंट्री है जिसमें लगभग 36 मिलियन हेक्टेयर लैंड में ऑर्गेनिक है या नेचुरल प्रोडक्ट मिलता है। यूरोप के देशों में टोटल 17 मिलियन हेक्टेयर्स में ऑर्गेनिक खेती की जाती है, और लैटिन अमेरिका में लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर्स। हमारा जो मार्केट है इंडियन ऑर्गेनिक फूड मार्केट, जिसको कि अपेडा कंट्रोल करता है हिंदुस्तान में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। सो उन्होंने नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन शुरू किया है, और इसमें वो सर्टिफाई कर रहे हैं डिफरेंट एजेंसीज को। इट इज इन्वॉल्व इन सर्टिफिकेशन एंड इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। सो दैट इज NPOP, नेशनल प्रमोशन फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। NPOP प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट ने चलाया है, and we are trying to meet our products or produce as per the European standard or as per the international bodies। तो हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुकाबले बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं अभी थोड़े लो क्वालिटी के हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसकी क्वालिटी और भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एरिया अंडर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हमारे पास टोटल जो अभी रिपोर्टेड है वो है 43,39,184.93 हेक्टेयर। ये 2021 का फिगर, जो रिसेंट फिगर हमारे पास यही है। इसमें इट इंक्लूड्स 26,57,889 हेक्टेयर ये कल्टिवेबल है। बाकी के सारे वाइल्ड हार्वेस्ट है, जो हमारे जंगल हैं हिमालय के, उत्तराखंड के या फिर दूसरे इलाकों के, उस फॉरेस्ट इलाके से जो वाइल्ड हार्वेस्ट होता है, उस वाइल्ड हार्वेस्ट में लगभग जो एरिया है वो 16,81,295 हेक्टेयर का लैंड वाइल्ड हार्वेस्ट है। सो वी डू हैव द रीजनेबल गुड फॉरेस्ट इन होल ऑफ द हिमालयस। देन इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट वी हैव फॉरेस्ट इन छोटा नागपुर, इन छत्तीसगढ़, ओडिशा and all such areas, and in West Bengal also we have the Sundarban। So all such areas give us about 17 lakh हेक्टेयर में हम लगभग वाइल्ड हार्वेस्ट करते हैं। हमारे जो लीडिंग स्टेट है मध्य प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एंड दूसरे स्टेट्स भी धीरे धीरे इसमें आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ये मूवमेंट कुछ दिन पहले शुरू की गई है, जम्मू एंड कश्मीर एंड कर्नाटक। तो 2016 में सिक्किम ने अपने आप को पूरी तरह से ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया, जिसकी प्रेजेंटेशन मैंने सुनी। 75,000 हेक्टेयर लैंड को इन्होंने पूरी तरह से ऑर्गेनिक करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि अभी भी सिक्किम के पास
एक उतना सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट करने के लिए चीजें उपलब्ध नहीं है। हालांकि नेचुरल उनके पास काफी कुछ है, लेकिन वो रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है कि इस कारण से ऑर्गेनिक करने से वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल बदली और उनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, और ग्रेजुअली इट इज परकोलेटिंग डाउन टू द पुअर फार्मर ऑफ सिक्किम। वो एक स्टडी हमें करनी पड़ेगी कि अनलेस इट इज रीचिंग in increasing the status of the farmers, it will not be very fruitful. So long run के लिए हमें वैसी स्ट्रेटजी सिक्किम में बनानी पड़ेगी, जिसके बारे में कल हमारे जो एक्सपर्ट थे, जो अन बलगन साहब ने हमें बताया था। जो हमारा प्रोडक्शन है आज की तारीख में लगभग 35 लाख मिलियन टन है, जो कि 2020-21 का फिगर आता है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक के नाम पे। तो इसमें हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ऑयल सीड्स हमारा नंबर 1 पे है, दूसरे फाइबर एंड शुगरकेन, सीरियल्स, मिलेट्स, कॉटन, पल्सेस, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स, हर्बल चीजें हमारे काफी दूसरे हमारे ही लोग दूसरे जगह पर कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो हमारे लोग हैं वो सबसे ज्यादा हमारी चीजों को खरीदते हैं। एंड इसके अलावा दूसरे लोगों में भी ये प्रचलित है हमारे जो हर्बल एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं। द प्रोडक्शन इज नॉट लिमिटेड टू द एडिबल ऑयल सेक्टर बट ऑल्सो प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर की डिमांड भी काफी जगह पर है कि ऑर्गेनिक वे में इसको ग्रो करें और एक नेचुरल फाइबर से क्लोथ्स बनाए जाएं, तो ये भी एक मार्केट है। Among the different states, Madhya Pradesh is the largest producer, followed by Maharashtra, Karnataka, Rajasthan and Uttar Pradesh. तो धीरे धीरे हमारे पंजाब हरियाणा का नाम नहीं है इसमें, तो ज्यादातर मध्य प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट। और ऑयल सीड्स में सबसे ज्यादा हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन लिमिटेड टू राजस्थान एंड सम अदर प्लेसेस ही ज्यादा है, दूसरी जगहों पर कम है। इसके अलावा दूसरे क्रॉप्स में हर्बल एंड मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, फाइबर क्रॉप्स, ये सारी चीजें नजर आती हैं। जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं अभी आज की तारीख में, वो लगभग 9 लाख मीट्रिक टन ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट हो रहा है। 8,88,180 मान लीजिए 180 मिलियन टन, जिसमें कि द ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स रियलाइजेशन इज अबाउट 7,849 lakhs। इतने यानी हमारे पास लगभग 1,040 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर हम एक्सपोर्ट करके कमा रहे हैं। ये पोटेंशियल काफी बढ़ सकता है हमारे पास, अगर सारे रिसोर्सेज सही ढंग से एक्सप्लॉइट किए जाएं, उसका मार्केटिंग मैकेनिज्म बने, तो ये जो एक्सपोर्ट है इसकी वैल्यू हम बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारे पास पोटेंशियल है, लेकिन हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो हम सारे कंट्रीज में हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, चाहे यूएसए है, यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, ग्रेट ब्रिटेन है, कोरिया है, इजराइल, स्विट्जरलैंड, इक्वाडोर, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया, तमाम जगह हैं। लेकिन ये लिमिटेड क्रॉप्स ही अभी तक हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। एक्सपोर्ट वैल्यू का सबसे बड़ा हिस्सा जो हमें मिल रहा है वो किस चीज से मिल रहा है? सोया मील, लीडिंग प्रोडक्ट्स, फॉलोड बाय ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स की जरूरत विदेशों में काफी है और उसको हमें और भी बढ़ाना चाहिए इसका क्षेत्रफल। सीरियल्स एंड मिलेट्स 7%, plant crop products such as tea and coffee 6%, spices and condiments it's about 5%, medicinal plants 5%, dry fruits 3% and sugar etc 3%। तो ये एक पोटेंशियल मार्केट जो आपको नजर आ रहा है, उसमें हम लोगों को सोचना है और उसी तरह से स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जो हमारी गवर्नमेंट बॉडी है एट प्रेजेंट जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, so they are trying to promote through the NPOF, that is नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो NCOF बनाया है गाजियाबाद में। इसके अलावा 6 सेंटर बनाए गए हैं, रीजनल सेंटर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे पंचकुला में एक इस रीजन के लिए बनाया है। लेकिन इनका जो अभी काम मुझे नजर आया वो काफी लिमिटेड है, और ये कोशिश तो कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें, इसमें साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल कैपेसिटी बढ़ाई जाए, प्रोडक्शन, प्रमोशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स। और ऑर्गेनिक इनपुट्स पे काम करने वाले अभी भी हमारे पास कम नजर आते हैं।
अगर इनपुट्स हम ठीक करें तो काफी हद तक इसमें हमें मदद मिलेगी। सॉइल हेल्थ असेसमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो हमारे रीजनल सेंटर है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन जनरेशन थ्रू सर्च एंड इट्स डिसेमिनेशन। सो लोगों को और भी इसमें इंफॉर्म करने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है, ताकि तभी लोग इसको अडॉप्ट करेंगे और फिर हम इसको नेटवर्क कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, इसका हम प्रोडक्ट क्वालिटी के एश्योरेंस सिस्टम यानी सर्टिफिकेशन का काम करें। और मास अवेयरनेस बाय क्रिएटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द पीपल थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये 6-7 इनके एजेंडा है जो कि हमारे RCOF काम कर रहे हैं, रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इस मेथड से इनकी अचीवमेंट मुझे कोई अप टू द मार्क लग नहीं रही है, इसमें कैसे इनको आगे हम बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट जैसे कि आपने देखा था लगभग इतना है, और वो एक्सपोर्ट वैल्यू हमें मिल तो रहा है, लेकिन इसको हम अवश्य इसको बढ़ा सकते हैं। हमारे पास पूरा पोटेंशियल है, इसको टारगेट करके अगर हम आगे चलें। प्रधानमंत्री जी का भी एक विशेष मतलब इस पे अटेंशन है कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड ओवर में जब मार्केट है तो हम भी इस पर क्यों ना काम करें, इनकी भी एक चाहत है। तो ही ऑल्सो वांट्स टू मेक इट इज अ जन आंदोलन। दैट Prime Minister said that those who will benefit the most of the natural farming constitute about 80% of the farmers. They are the small farmers. He asked every state government to come forward to make natural farming a जन आंदोलन। तो ये कह रहे थे कि आज जब दुनिया ऑर्गेनिक की बात करती है, नेचुरल की बात करती है, और जब बैक टू बेसिक की बात होती है तो उसकी जड़ें भारत में तो ज्यादा मजबूत नजर आती हैं। ये प्रधानमंत्री का ऑब्जर्वेशन है। खेती किसानी के इर्द गिर्द हमारा समाज विकसित हुआ है और परंपराएं घोषित हुई हैं, पर्व त्योहार भी इसी तरह से बने हैं। तो इनकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है कि हम अगर ऑर्गेनिक नहीं कर सकते, हम अगर जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो फिर दूसरे कौन करेंगे। सो दैट इज द ऑब्जर्वेशन। और he is trying to motivate the farmers and trying to promote this thing, but वो पोटेंशियल जो चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। बार बार इन्होंने मीटिंग की है और ये प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन रास्ता कहाँ से निकले, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह से जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसमें 4 या 5 मुख्य बातें हैं। एक तो ये बीज अमृत का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि बीज को ट्रीट करते हैं और उसमें नीम और दूसरी तरह की चीजों का इस्तेमाल करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं काऊ डंग और काऊ यूरिन के साथ में, और हमारे बीजों को ट्रीट करते हैं। तो ये 4-5 दिन तक इसकी प्रिपरेशन करते हैं बीज अमृत की, और जो भी बीज होता है उसको पहले ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें जर्मिनेशन अच्छा हो और उसमें डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी उसकी बढ़ जाए। दूसरा काम ये करते हैं, जीव अमृत बनाते हैं। जीव अमृत बनाने के लिए जैसे कि आप इनके मटेरियल जो है आप क्या क्या लेते हैं, काऊ डंग, यूरिन, जैगरी, ये फिर बेसन का आटा और मिट्टी, ये 3-5 चीजें इकट्ठी करके इसके अलग फॉर्मेशन में सब इकट्ठे करते हैं और इसकी एक स्लरी तैयार करते हैं, और इस स्लरी में ही माइक्रोबियल कल्चर डेवलप करते हैं। सो इस सारा का सारा जो खेल है माइक्रोबियल कल्चर का है। हम एक ऑप्टिमम इन्वायरमेंट दे रहे हैं कि मैक्सिमम माइक्रोबियल कल्चर डेवलप हो, और ये कल्चर फिर जमीन में जाकर वहां के माइक्रोबियल यानी कि हमारी सॉइल बायोलॉजी को ठीक करे, सॉइल हेल्थ को मेंटेन करे। लेकिन जहां पे पहले से ही केमिकल बहुत जा रहा हो और मिट्टी खराब हो, अचानक से आप कोशिश करेंगे कि इस मेथड को इस्तेमाल करके आप उसकी काया पलट कर दें, तो ये इतना आसान नहीं है। शुरू में आपको अदर मेथड्स के साथ चलना पड़ेगा, और 1-2 सालों के बाद में ही ये जो मेथड है माइक्रोबियल कल्चर वाला, ये तीसरे साल दूसरे साल में ही सफल होगा। तो कोई अगर किसान सोचे कि अचानक से वो ये मेथड अपना ले और उससे कुछ करिश्मा होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। So you have to maintain it for at least 2 years. Later on, such mechanism, such ecosystem will be generated. After that, we can claim that Jeev Amrit is working. शुरू में अचानक से ये काम मुझे नहीं लगता है कि करता होगा या करेगा। इसमें फिर मल्चिंग और वही नेचुरल प्रोसेस का महत्व है, जिसको कि आजकल फार्मर्स जान चुके हैं कि कवरेज क्रॉप किस तरह से पूरे खेत हमारे ढके होने चाहिए, ताकि सॉइल मॉइस्चर के साथ साथ सॉइल फर्टिलिटी
मेंटेन रहे और समय पर उस क्रॉप को हमें ग्रो करना चाहिए ताकि मिट्टी पूरी तरह से हमारी जो धरती है वो ढकी रहे। तो इसका तो काम हम पहले से भी सोच रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इसके बारे में पहले भी बातें करते हैं, हाउ टू मेंटेन द मॉइस्चर लेवल ऑफ द सॉइल। ये सारी 4 बातें ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की आपको हैं, जिसके ऊपर ये सारा का सारा काम चल रहा है। तो हमारे नेक्स्ट जो फार्मर आएंगे उनसे आप विशेष जानकारी दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं। ये हमारे सर्टिफाइंग बॉडीज हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए, और इसमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी काफी ग्रुप ने फॉलो किया है। और हमारे लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अभी स्टेट लेवल पर बॉडीज कमजोर है। ये सारे इंडिविजुअल कमोडिटी वाइज कुछ बॉडीज बनी हुई हैं, लेकिन ये बॉडीज और भी बनाने की जरूरत है। और ये स्टेट लेवल हमारे पास बॉडीज मजबूत होनी चाहिए और उसका एक मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे पंजाब एग्रो ने यहाँ शुरुआत तो की, लेकिन इन्होंने कोई स्ट्रेटेजी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं बनाया और फर्दर इसकी प्रमोशन नहीं कर पाए। यहाँ 27 सेक्टर में इन्होंने जरूर एक आउटलेट खोला और कुछ कोशिश की, लेकिन ये कोशिश पर्याप्त नजर नहीं आती। दोस्तों, हम NITTR चंडीगढ़ में जो एक्सपेरिमेंट किया एज अ रोल ऑफ, क्योंकि हमें रूरल डेवलपमेंट और ये सारे प्रोजेक्ट्स को करने के लिए तो हमने भी अपने यहाँ पर एक फार्म बनाया 2010 में, और वहां पर कुछ छोटी खेती की। हमारा मेन काम ये नहीं है, तो हमने ये कोशिश की एक बायोगैस प्लांट लगाकर, और उससे जो सैलरी मिलती थी उसका प्रयोग करके कुछ खेती शुरू की। और हमने भी कोशिश की लोगों को दिखाने के लिए एटलीस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर कि क्या हम कुछ कर सकते हैं। सो दैट थिंग वाज देयर। लेकिन 2015 में हमने एक विशेष प्रोग्राम फार्मर्स के लिए शुरू किया, और वो था एक वीकली मार्केट हमने अपने कैंपस में शुरू किया, जिसमें कि एक हमारे टेक्निकल के डायरेक्टर उत्तर प्रदेश से और वहाँ के स्पेशल सेक्रेटरी मैडम मोनिका, जो कि चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, ये 17 जुलाई को 2015 में ये सारे लोग इकट्ठे हुए। ऑल ऑफ ए सडन हमने 8-10 यहाँ के फार्मर्स को इकट्ठा किया और ये एक्सपेरिमेंट एक वीकली मार्केट का अपने कैंपस में शुरू कर दिया। इससे पहले हम तमाम तरह के इस तरह के सेमिनार जो आपके साथ चल रहा है, ऐसे सेमिनार यहाँ पर आयोजित करते रहे हैं। हालांकि 1-2 साल में हम ये आयोजित करते हैं, जिसमें कि प्लानिंग कमीशन से कुछ मेंबर्स, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट, फार्मर्स और तमाम तरह के लोगों को हम लोग इकट्ठा करते हैं। और ये डिस्कशन करना हमारा एक बहुत अहम काम है यहाँ पर, जिसके जरिए हम लोगों से जुड़े हुए। जैसे एक महिला है, ये किसान चाची के नाम से जानी जाती हैं, ये बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से। ये महिलाओं में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही हैं, और पिछले साल इनको भी पद्म श्री मिला। तो ऐसे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, और टाइम एंड अगेन वी ट्राई टू ब्रिंग सच पीपल हियर एंड वी ट्राई टू डिस्कस ऑल सच इश्यूज रिलेटेड टू फार्मर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ऑल सच थिंग्स। इसी तरह से जगत सिंह जगली जी हैं, वो हमारे प्रोग्राम में काफी जुड़े हुए हैं। ये ग्रीन एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड है। इन्होंने अपने गांव में एक 5 हेक्टेयर का मिक्स्ड फॉरेस्ट तैयार किया है। सो इट्स यूनिक एक्सपेरिमेंट ही हैज डन, एंड ही इज आल्सो ट्राइंग टू प्रमोट organic farming in his village and other places, and that forest model has given him a very good status. Likewise is Ram Saran Verma. He has been also coming to this institution quite regularly. He is a pioneer farmer from Barabanki, Uttar Pradesh. I was talking about his turnover is about 5 to 6 crore in a year, and he is also converting part of his agriculture, about 40 acres, in organic. Similarly, there is a person called Jasbir Singh. Gulal is a pin near to Ludhiana. Such farmers have been coming, and we developed a network with such people. And in 2015, we organized a big seminar. आपको एक सेमिनार की कहानी सुनाते हैं। हमने लगभग 2,500-3 हजार किसानों को यहाँ पर बुलाया, ये ऑर्गेनिक कन्वेंशन किया हमने 3 दिनों का, ये फरवरी मार्च में 2015 में, जिसमें अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है जिससे कि आप सीखेंगे। देखिए, पहले दिन हमने बड़े तामझाम लगाए। हमारे पास 2,500 फार्मर इस कैंपस में थे। एक बड़े मैदान में उनके लिए हमने टेंट लगाया और एक प्रोग्राम शुरू किया। पहले दिन हमारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा आए, फिर दूसरे दिन गवर्नर साहब आए, तीसरे दिन चीफ मिनिस्टर
और इस तरह से पूरे देश भर से तमाम तरह की एक एग्जीबिशन भी लगाई गई 3 दिनों के लिए। पूरे फार्मर्स, लगभग 2,500 फार्मर्स हमारे कैंपस में थे। और तीसरे दिन फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब आए, प्रकाश सिंह बादल साहब। इतना बड़ा तामझाम किया, फिर हमने इसको कई जगह पर स्ट्रीम लाइन किया, जैसे आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं तो कुछ हजार लोग उससे भी जुड़े। सो इट वॉज अ बिग नेटवर्क क्रिएटेड, अ मूवमेंट क्रिएटेड। लेकिन ये 3 दिनों के वर्कशॉप से, सेमिनार से हमें एक बहुत बड़ी ग्लानि हुई। ग्लानि ये हुई कि जिन 2200 फार्मर्स को हमने बुलाए थे, उनके मुद्दे गौण हो गए। और ये पंप और शो में हमें एक चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, वाइस चांसलर, ये सारे मुद्दे डिस्कस करते रहे और हम खाली दिखाने में लगे रहे कि भाई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। लेकिन इसका अल्टीमेट रिजल्ट हुआ कि फार्मर्स की बातें कुछ ज्यादा हो नहीं पाई। तो मुझे लगा कि केवल बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। So we have to do some action research. So we started a small experiment, and this experiment resulted into this small market with 7-8 farmers initially in 2015, and gradually we promoted this event through a small voluntary group that has been named as CHAI, चंडीगढ़ होलिस्टिक एग्रीकल्चर इनिशिएटिव करके एक छोटा ग्रुप बनाया जिसमें 8-10 वॉलंटियर्स हैं। उस वॉलंटियर्स ने इस काम को आगे बढ़ाया। तो जब हमारे पास थोड़ी जगह कम थी तो बगल के पॉलिटेक्निक में, चंडीगढ़ पॉलिटेक्निक में, इसको 1.5 साल तक अपने अधीन चलाया। और ये मार्केट धीरे धीरे पिकअप करने लगा। हमारा सोच था कि एक मार्केट चलेगा या नहीं चलेगा, हमें ये देखने की आवश्यकता थी। तो धीरे धीरे ये मार्केट पिकअप कर गया। सो दिस वे दिस होल मार्केट was expanded under our supervision. हमने ये कोशिश की कि भाई ये मार्केट चलेगा भी या नहीं चलेगा। और शुरू में तो ऐसा ही नजर आता था कि कोई ज्यादा इसमें फायदा था नहीं, लोग केवल इकट्ठे होते थे और एक एक फार्मर को महीने में 7,000 रुपए मिलते थे, यानी एक मार्केट से 1,500 रुपए प्राप्त होता था। ये एवरेज थी शुरू में। लेकिन 1.5-2 सालों में जब ये पिकअप कर गया, फिर हमें सुखना लेक पे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने एक जगह दे दी और 2017-18 में ये मार्केट जम गई, जिसमें हमारे पास 25 से 30 फार्मर हो गए और लगभग 300-400 लोग इस मार्केट में वीकली विजिट करने लगे और ये मार्केट पिकअप कर गया और ये चल पड़ा। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने इसमें हमें सहयोग दिया और वो इनडायरेक्टली सहयोग देते रहते हैं कि चंडीगढ़ इज अ सिटी ऑफ ओपन माइंडेड पीपल। और गवर्नर साहब ने इसमें विशेष सहयोग दे दिया, जिससे कि ये मार्केट बिना किसी इंटरफेरेंस के चलता रहा। और ये 2018-19 में पीक पे था, बिफोर पैंडेमिक। और उस समय एक आकलन किया, हमने स्टडी की, तो जो 7,000 रुपए प्राप्त करते थे, अब इससे मार्केट की इनकम लोगों की 24,000 पर मंथ हो गई। और इसमें कम से कम 4 या 5 फार्मर ऐसे थे जिसमें 50 से 60,000 रुपए वो पर मंथ इससे अर्न करने लगे। 4 मार्केट जो मिला उनके लिए एक जान बन गई। और 19 में फिर हमने दोबारा स्टडी किया, तो इट वाज एट द पीक इन 2019 एंड अबाउट 30,000 मनी पर मंथ दे वेर अर्निंग फ्रॉम दिस मार्केट। एंड ए वीकली मार्केट उनको सूट करती थी। बाकी के 5-6 दिन वो अपने फार्म पे काम करते थे और अपने प्रोड्यूस को इकट्ठा करके उसमें प्रोसेस करके इस मार्केट में पहुंचते थे। और दिस वे दिस मैकेनिज्म स्टार्टेड वर्किंग वेल। एंड हमने टाइम एंड अगेन इस मार्केट को प्रमोट करने के लिए अपने कैंपस में समय समय पे इस तरह के सेमिनार लगाए। ये हमारे पास एक व्यक्ति हैं जोगिंदर सिंह, ये भी मिलेंगे हमारे साथ। रोडू में इन्होंने ऑर्गेनिक एप्पल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ही इज IT एक्सपर्ट। 8-10 साल पहले एक IT कंपनी में बैंगलोर में काम करते थे, लेकिन इनका मन था कि अपने फार्म पे ही कुछ किया जाए। एंड लास्ट 10 years 2014 onwards he is growing organic apple along with about 30-40 farmers. So it's a new movement in Himachal Pradesh. And in Himachal Pradesh also our organic farmers organized a seminar there. एक हमने वर्कशॉप वहां पर किया जिसमें आचार्य देवव्रत जी हमारे साथ थे। एंड वी ऑर्गेनाइज अ 1-day सेमिनार देयर, जिसमें कि 700-800 हिमाचल यूनिवर्सिटी के सारे लोग हमारे साथ थे, उसमें जितने भी टीचर्स थे। हमारा मकसद था कि इसी तरह का जो सिस्टम हमने चंडीगढ़ में बनाया है
शिमला में हिमाचल यूनिवर्सिटी इस काम को करे, और इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा हुआ कि जो फार्मर का नेटवर्क था हमारे पास में, आचार्य देवव्रत जी के साथ ये मल्टीप्लाई कर गया। और जो जोगिंदर सिंह और ये सारे जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, अब ये गवर्नर साहब के साथ सीधे जुड़ गए, और इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये सारे ऑर्गेनिक एप्पल प्रोड्यूसर्स को एक साथ ले लिया। और अगले ही दिन उन्होंने अपने गवर्नर हाउस में एक मीटिंग बुलाई, एंड दिस यंग पीपल गॉट अ डायरेक्ट लिंक विद आचार्य देवव्रत जी, एंड दिस प्रोसेस गॉट मल्टीप्लाइड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये काम अच्छा हो गया। और अगले ही साल गवर्नर साहब उन गांवों में चले गए, मैं भी वहां पर आया, और 2018 में इन्होंने एक फार्मर्स का बहुत बड़ा सम्मेलन अपने गांव में ही आयोजित कर दिया। ये जितेंद्र और जोगिंदर दो ब्रदर हैं। दे ऑर्गेनाइज्ड अ सेमिनार ऑफ अबाउट 300 एप्पल ग्रोअर्स फ्रॉम ऑल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एट देयर प्लेस टू प्रमोट अ ब्रांड, टू प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज एसोसिएशन। जब तक बड़ा एसोसिएशन नहीं बनाओगे तो बिजनेस यूनिट नहीं खड़ा होगा। So this group is working for the creating a business cluster for organic apple production. हमारे जो फार्मर हैं इस ग्रुप से, जो 50-60 हजार रुपए महीने के कमा रहे हैं, एक नाबा से हमारे साथी हैं गुरमेल जी, इन्होंने काफी अच्छा इस फार्म मार्केट से इनकी आमदनी हुई। राजकुमार आर्या जी अभी थोड़ी देर में आपके पास आएंगे। He is earning about 70 to 80,000 rupees a month through this market and network. इनके पास ऐसा नेटवर्क है कि अब इनका सामान आने से पहले ही बुक हो जाता है, और चंडीगढ़ के लोग इनके साथ सीधा जुड़े हुए हैं, और he is earning about 70-80,000 rupees from this market. So there is another farmer, दर्शन सिंह रुदेल जी, ये नूरपुर बेदी में हैं, और ये भी इस मार्केट से जुड़े थे। So all such people are coming to this market, and time and again we are mobilizing such kind of effort. Some small farmers are also getting benefit out of it, and all kind of varieties is coming as per the season. As you know, we are growing all kind of crops and vegetables. So market में सभी चीजें उपलब्ध हैं, और process material भी जैसे जैसे इस market से ये किसानों ने ये सीखा कि प्रोसेस करके अपनी चीजें यहाँ लाने लगे, और उनको दाम भी अच्छा मिलना, क्योंकि कोई मिडिल मैन था नहीं। सो एक तरह का ये ग्रुप है, सेल्फ सस्टेनिंग मोड में ये काम कर रहा है, और इससे लोगों को काफी फायदा है। सो हमारे लिए अब चैलेंजेस है सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग की। फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, लेकिन हम फूड सिक्योरिटी तो प्राप्त कर चुके हैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की जरूरत जबरदस्त हिंदुस्तान में है, जहां पर एक चौथाई लोग डायबिटीज और दूसरे चीजों से मर रहे हैं। लोगों के पास पैसे हैं तो दे वांट न्यूट्रिशनल फूड, एंड other way the farmers they can grow it for this category of the people, rich people. So premium group भी हमारे लिए है, और उसके लिए हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकते हैं। फिर हमें बायोडाइवर्सिटी को दोबारा जितना है उतना तो बचा लें, और लिंकेज बिटवीन एनिमल हस्बेंड्री एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज प्रूव्ड ऑलरेडी। सो दोनों चीजों को हमें साथ ही लेकर चलना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी बेशक लो हो, इसको हमें धीरे धीरे, अगर लैंड एंड सॉइल के स्टेटस को हमने ठीक किया, देन विल गेट अ बेटर स्टेटस। एंड एक्सपोर्ट के लिए जो चीजें चाहिए उससे अभी हम थोड़े नीचे हैं, उसके लिए हमें तैयारी और भी करनी पड़ेगी, ताकि हम एक ब्रांड लीडिंग स्टेट पंजाब हरियाणा ऐसे जगहों पर बना सकें, ताकि हम ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट कर सकें। और एज पर रिसर्च इज कंसर्न, मुझे लगता है कि इनपुट पे हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। अच्छे सीड्स, कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, फार्मर्स को सही तरह से टेस्टेड तरीके से अपने डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए इसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। कुछ हमें एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने चाहिए, सो दैट ऑल सच इनपुट्स आर अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। अगर इनपुट्स लार्ज क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल होगी तो फार्मर्स के लिए आसान होगा, और धीरे धीरे वो इस अपने फार्म को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्योंकि एक फार्मर सब काम नहीं कर सकता है, एवरीथिंग कैन नॉट बी डन बाय द फार्मर। सो वी हैव टू ट्रेन सम एंटरप्रेन्योर्स हु कैन गो फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स, मेरा मानना यह है। तो सिविल सोसाइटीज, एनजीओ एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए इसको प्रमोट किया जाए। कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, ये फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनाई तो है गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी भी इसमें कमियां काफी हैं।
So we have to further think about that, how the marketing network can be strengthened. और हमारे पास हॉर्टिकल्चर में ज्यादा हमारे पास चांसेस है, लेकिन ये खतरा यही नजर आ रहा है कि सारे बिग प्लेयर्स, फैब इंडिया, रिलायंस, आईटीसी, भारती, टाटा, ये सारे भी इसमें आ रहे हैं। तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदा ये है कि मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, उसके कंपटीशन में अगर हम और भी चीजें ग्रो कर सकें और इस मार्केट को हम सही दाम पे अगर इनको भी दें तो हमें कोई घाटा नहीं है। लेकिन होता यही है कि काम वही करते हैं, वो कम दामों में खरीदते हैं और उधर जाकर काफी बड़े दामों में बेच लेते हैं। फैब इंडिया में हमारे फार्मर से तो प्रोड्यूस काफी कम में लिया होगा, लेकिन वो बेचते बड़े हाई दाम में। तो हमारे लिए बहुत सारा रिसर्च एरिया निकल के आ रहा है ऑर्गेनिक इनपुट्स के ऊपर। क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीकल्चर एक रिसर्च का विषय है कि क्लाइमेट के हिसाब से कैसे पैकेजेस बदले जाएं और कैसे क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, और जो हमारा पोटेंशियल एरिया जो है ऑर्गेनिक का, हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स या फिर हॉर्टिकल्चर, इन सभी चीजों को हमें प्रमोट करें जो ऑर्गेनिक में हो सकता है। सो हमारा कंक्लूजन ये नजर आता है कि भाई इनोवेटिव एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर की जरूरत आज की तारीख में और ज्यादा है। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इनोवेशन करने की जरूरत है कि एग्रीकल्चर एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है, और किसान ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं और साइंटिस्ट को उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रॉफिटेबल चाहत को जानते हुए उस मार्केट को एक्सप्लॉइट कर सके। वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग, हमने तो यही सीखा जो मार्केटिंग हमने किया कुछ दिनों तक, और नेटवर्किंग एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड इनकम। तो ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं कि मार्केट में संभावनाएं हैं, लेकिन इस मार्केट को क्रिएट करना एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसके लिए एक डील चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए, और समय समय पे ऐसे वर्कशॉप एंड सेमिनार होने चाहिए। और एज एन इंस्टीट्यूशन we can also promote this thing at the local level by engaging the institutions. So जो भी इंस्टीट्यूशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटा मार्केट अपने इंस्टीट्यूशन में ही क्रिएट करिए, और एक वीकली मार्केट का प्रयोग आप लोग भी कर सकते हैं, ये मेरा सोचना है। एंड दैट्स हाउ वी कैन थिंक ऑर्गेनिक, डू ऑर्गेनिक, eat organic, feed organic, and market organic also. That is also very, very important. So my dear friends, this was the discussion. Now let us have some kind of a debate that what we can do in this area and what are the possibilities. So house is open for the debate, and after that I feel our expert will be also joining us. So now house is open, and the first I give to Professor Subhash Sharma ji to give his comment that पंजाब हरियाणा में हम ऑर्गेनिक को कैसे प्रमोट करें। तो पहले 5 मिनट 7 मिनट में सुभाष शर्मा जी को देता हूं, इसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे उसके बाद करेंगे। तो ओवर टू डॉक्टर सुभाष शर्मा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रॉय साहब और सारे पार्टिसिपेंट्स। बहुत ही रोचक आपने लेक्चर दिया, उसके लिए आप बहुत हम धन्यवाद करते हैं, और आपको बहुत मुबारकबाद कि इतना अच्छा प्रोग्राम ये चल रहा है और बहुत पार्टिसिपेंट में उत्साह है। तो कुछ चीजें जो हैं वो आपने आज हाईलाइट कर दी, और कल हमारे यहाँ एक पंजाब के एक किसान ने कुछ मुद्दे उठाए थे, तो हमने भी आपके अनुरोध पे कहा था कि जब हमें समय मिलेगा, क्योंकि सेशन में कई बार समय नहीं मिल पाता, तो हम उन मुद्दों को लेकर के आप कोशिश करेंगे कि उनको उत्तर मिल सके। आपने अभी मार्केट की बात की। पंजाब और हरियाणा जो हमारे प्लेन एरिया है, जिसको फूड वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जहां हम धान और जो गेहूं है वो उगाते हैं, और ग्रीन रेवोल्यूशन जब 60s में आया तो उसमें हम निर्भर तो हो गए, लेकिन कुछ हमें समस्या भी खड़ी हो गई, जिसमें पानी की समस्या सबसे ऊपर है। जहां तक हम कल भी बता रहे थे कि एक पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की रिसर्च है, जिसमें 2000 के करीब हम लोग 7200 टन
जो रसायन थे, केमिकल्स थे, वो यूज किया करते थे। लेकिन लोगों में धीरे धीरे समय के साथ चेतना भी आई, जागरूक हो गए, और इसके फलस्वरूप आज 2020 में हमारे पास जो डाटा है वो लगभग हम आधे तक पहुंच गए हैं। तो हमारी कोशिश तो है, लेकिन हम लोग इतनी बड़ी जनसंख्या को अन्न देने के लिए बाध्य थे, और हमें कुछ सोचना पड़ा कि हम रासायनिक जो खादें हैं, कीटनाशक है, उनका प्रयोग करें। तो ये सब होने के बाद अब प्रश्न आ गया कि हमारी जो सरकारें हैं, हम लोग हैं, बीमारियों को देखते हम चाहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक फूड मिले। लेकिन ऑर्गेनिक फूड तभी मिल सकता है जब उसके लिए एक बहुत बड़ी जागरूकता हो हमारे समाज में, जिसको लेके आप चले हुए हैं और आपको बहुत सफलता भी प्राप्त हुई है। मैं एक दो उदाहरण लूंगा कि जैसे यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो पंजाब की है, हरियाणा की है, उत्तर प्रदेश की, और जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब ने लोगों को एक चेतना दी कि भाई आप किचन गार्डनिंग करो, और साल में 2 बार खरीफ और रबी जो फसलें होती हैं उनमें एक वो पैकेट देते हैं जिसमें कम से कम 10 किस्म की सब्जी होती है। और वो सब्जी, कल भी कुछ लोग कह रहे थे कि किसी के पास जो है वो जमीन नहीं है, कैसे करें। आज के समय में जो शहरी लोग हैं वो तो छत के ऊपर रूफ टॉप जो गार्डनिंग है उसको कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, और अपने घर के गुजारे के लिए वो सब्जी उगाने में समर्थ हो रहे हैं। इसके साथ ही जैसे हम अगर तेल की बात करें, तो तेल जो है, जो हमारे एक न्यूट्रिशन से रिकमेंडेशन है कि 20 ग्राम प्रति व्यक्ति हर रोज से ज्यादा वो तेल कंजप्शन नहीं करे। लेकिन तेल खाना भी तो जरूरी है। अगर एक 5 लोगों की फैमिली हो तो उसमें लगभग 2 लीटर तेल जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। अब सारा साल में हम देखें तो लगभग ये 24 किलो बन जाएगा तेल। लेकिन अगर उसी जैसे अभी कैनोला ऑयल है, कैनोला ऑयल जो सबसे बढ़िया ऑयल है, और अगर हम देखें कि हमारे देश में इंपोर्ट जो होता है लगभग 13 मिलियन टन ऑयल, एडिबल ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है। कितना पैसा हमारा बाहर जा रहा है। फिर उसमें क्या हो रहा है कि पाम ऑयल को मिक्स करते हैं, जो बहुत ही एक खतरनाक ऑयल है। तो अगर हम लोग, जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, तो रूरल पॉपुलेशन जो है हमारी, वो लगभग जो पंजाब की पॉपुलेशन है 3 करोड़ है। रूरल फैमिलीज की हम बात करें तो हमारे पास में एक बहुत लगभग 1/3 जो रूरल फैमिलीज हैं, अगर वो लोग एक कनाल हुआ 500 स्क्वायर मीटर जगह, और एकड़ के पीछे 8 क्विंटल सरसों पैदा हो जाती है। यानी कि 1 क्विंटल सरसों आप ले सकते हैं 1 कनाल भूमि से। और वो जो रूरल लोग हैं उसका जो 30% ऑयल है मिनिमम निकलता है, तो 30 किलो तेल तो निकल गया। तो एक फैमिली के लिए उसका घर का ऑर्गेनिक तेल वो अपने घर में उगा ले, तो मेरे को लगता हम इतने बड़े एक स्टेट में ही कितना ऑयल इंपोर्ट बचा सकते हैं। साथ में वो ऑयल जो है वो हमारा ऑर्गेनिक होगा। इसी तरीके से अगर हम किचन गार्डनिंग को अपना लें, तो कोई कह रहे हैं जैसे आपके पास बहुत समस्या आ रही है, आपने कितने बड़े वो हट्स चलाए, आत्मा में हट्स चल रहे हैं हर जिले में, तो वो मार्केटिंग की समस्या, घर में ही मार्केट है आपका, वेजिटेबल का इतना बड़ा मार्केट तो घर में है। तो कम से कम अगर हर व्यक्ति जिसको पॉसिबल है, चाहे वो रूफ टॉप में करे, घर में करे, बैकयार्ड में करे, तो मेरे को लगता कि वो एक मार्केट जो है वो इस तरीके से घर में ही पैदा कर सकता है। दूसरा कुछ प्रश्न जो थे, अब जैसे लोग कह रहे हैं हम लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, किसान हैं, तो उनको जैसे आपने अभी एक लिस्ट बताई, आप एडा में चले जाओ, तो वो उस किसान के लिए मैं पार्टिकुलरली ये जवाब देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ में सेक्टर 28A में आपके बिल्कुल बगल में उनका दफ्तर है। तो क्या होता है, हम लोग एक तो संवाद नहीं करते, लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते। आज आप इतना बड़ा सेमिनार, कितना समय लग रहा है, इसमें ही लोग अगर उपस्थित हों, पूरी बात सुने, तो मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीजें तो लोग यहाँ से सीख के उनको अपना सकते हैं अगर वो उसको फॉलो अप करें। इसी तरीके से उस किसान का एक प्रश्न था कि अगर मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। तो हमारे देखिए, आपने कल गाजियाबाद की बात की थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना बड़ा सेंटर है,
उसका पंचकुला में एक बहुत अच्छा सेंटर है, वो ट्रेनिंग देते हैं, वीकली भी देते हैं, वन डे के प्रोग्राम उनके पास होते हैं। फिर अगर थोड़ा सा हम और पंजाब की बात करें तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का एक नाम है। उनका हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है जहां वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं, वीकली ट्रेनिंग भी देते हैं। और जैसे उनको ये एक तरीका चाहिए कि किस तरीके से हम करें, तो कुछ किसान तो अभी शायद मेरे से ये प्रश्न पूछ लेंगे कि पंजाब में हम तो पैडी बीट रोटेशन कर रहे हैं, उसमें हम ऑर्गेनिक कैसे करेंगे। लेकिन हमारे पास एक मॉडल है, क्योंकि वहां पे एक डिपार्टमेंट ऑफ जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो लुधियाना में भी है। इसी तरीके से बगल में हमारी यूनिवर्सिटी पालमपुर है, वहां पे स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का है। तो लोग उनके साथ जुड़ के वहां से लिटरेचर भी ले सकते हैं, वहां से ट्रेनिंग कर सकते हैं, और ये सब करने के बाद वो अपने ये अपना सकते हैं। तो एक मैं छोटा सा मॉडल बताऊंगा, और आपने तो डॉक्टर साहब वाटरशेड मैनेजमेंट में बहुत इन डेप्थ में काम किया है। तो अगर हम इंडियन दिस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करें छोटे किसान के लिए, जिसके पास केवल 1 हेक्टेयर जमीन है, 2.5 एकड़ जमीन है, अगर वो 2 गाय रख लेते हैं, और कल आपने बैनी साहब की बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मैंने भी कई बार विजिट किया क्योंकि मैं वहां काम किया है, तो उन लोग कैसे वो ऑर्गेनिक फोडर लाते हैं, किस तरीके से वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो अगर हम एक मॉडल बताते हैं कि अगर जैसे कल आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की, अब कोई कहेगा कि जी रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो वाटरशेड में होगा, पहाड़ी इलाके में होगा। नहीं, हमारे पास कई बार कहते हैं कि सरप्लस वाटर हो गया, बहुत ज्यादा बरसात हो गई। अगर आपने अपने फार्म में ही एक डग आउट पॉन्ड बनाया है, उसमें तो कुछ करना नहीं है, उस डग आउट पॉन्ड को, बड़ी बात अगर आप चाहते हैं जी कि सीपेज हो जाती है, तो लाइनिंग पॉलीथीन शीट बचा दो और उस पानी को वहां पे डाल दो। और मैं आपके उस मॉडल में जोड़ना चाहता हूं सोलर एनर्जी, जो आजकल पैडा वाले या दूसरी गवर्नमेंट कितने सब्सिडी दे रहे हैं, और वहीं पे आप एक सोलर पंप लगा लेते हैं, तो उस पानी को आप सोलर एनर्जी से पूरा स्प्रिंकलर यूज कीजिए, ड्रिप इरिगेशन कीजिए, आपके वहीं पे अपना पानी हार्वेस्ट हो जाएगा। आपको जो ज्यादा बरसात की समस्या हो जाती है फसल के लिए, खराब हो गई, वो भी उससे सॉल्व हो जाएगी। साथ में आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं, और उस पानी को जमीन में दोबारा वापस कर सकते हैं ट्रीट करने के बाद। और इस तरीके से आप उस पेरीफेरी में, जैसे आपने कल नॉर्दर्न सॉदर्न की बात की थी कि बड़े पेड़ों को जो है आपको इस एस्पेक्ट में लगाना चाहिए ताकि छाया का असर ना हो, तो उसी में आप फ्रूट प्लांट्स लाइए, उसी में आप जो टिम्बर ट्री है उसको ले आइए। किचन गार्डनिंग के लिए सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया कि ज्यादा नहीं तो 6 बाय 6 मीटर आप उसमें मरला 1.5 मरला जगह छोड़ लीजिए और अपने घर की सब्जी कर लीजिए। तो इस तरीके से वो मॉडल की जो हम इकोनॉमिक्स बताते हैं कि अगर पैडी बीट कोई करता है, अगर उसको 1 रुपया मिलता है तो इस मॉडल से 3.5 रुपया, और उसके पास उनको डाटा है, पब्लिश डाटा है। और ऑर्गेनिक सिस्टम में आपने अभी एक रुदैल जी की फोटो दिखाई, वो आज से मेरे पास 25 वर्ष पहले आए थे, जब मैं वहां कंडी में एक कंडी खोज केंद्र में डायरेक्टर था। तो वो मेरे से पूछना है, और वो फ्रांस से आए हुए हैं व्यक्ति, जिन्होंने नूरपुर बेदी के पास में ही उन पहाड़ियों में जहां लोग कहते कि जी फर्टिलिटी नहीं है, डाइवर्सिफाइड होने से सबसे रिच वो इलाका है, तो वहां पे उन्होंने अपना फार्म बनाया। जब मार्केट की बात आई तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाया, और वो 34 सेक्टर में रहते, तो कितना अच्छा वो मार्केट कर रहे, कितना बढ़िया काम कर रहे। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे से प्रश्न किया कि बासमती जो है वो क्या, तो हमने कहा कि बासमती में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज होता है। तो उन्होंने कहा हमें तो ऑर्गेनिक करना है। तो उन्होंने ऑर्गेनिक बासमती वो आपके हाट में वहां बेच रहे हैं, और किस भाव से बेचते हैं मेरे से ज्यादा आपको मालूम है। इस तरीके से जो मेज वेट है, मेज वेट का जो रोटेशन है, अभी आपने वो बैनी साहब की बात की, अगर वहां से आपने फोडर देना है तो आपको ऑर्गेनिक फोडर होगा, तभी तो ऑर्गेनिक दूध आएगा। ये सब जो मॉडल हैं अवेलेबल हैं, और वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं। लेकिन बात यही है कि आपने किस तरीके से उसको अप्लाई किया है। फिर हम थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि जितने भी किसान भाई हैं या हमारे दूसरे भी लोग हैं, वो हर जिले में, क्योंकि कई बार क्या होता है यूनिवर्सिटी में आदमी जा नहीं पाता, दूर होता है, तो उनको कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में रहता है। तो हमें उनसे एक निवेदन है कि जरूर उनसे संपर्क बनाएं, ट्रेनिंग का शेड्यूल बना होता है उसको अटेंड करें। हर जिले में एक आत्मा
नाम से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहां पे भी मार्केट को तभी होगा जी अगर वहां पे कोई बेचने वाला आएगा, तो धीरे धीरे खरीदने वाले तो मिल जाते हैं। अब आपका कैंपस छोटा पड़ गया तो आप सुगना लेक पे पहुंच गए, तो मेरे को लगता है इस चीज की कमी नहीं है। और आज जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं वो सब लोग ऑर्गेनिक भोजन खाना चाहते हैं। प्रॉब्लम एक ही है कि ऑर्गेनिक भोजन मिलता नहीं है, उसकी गारंटी नहीं होती है, जिसके लिए आप भी प्रयत्नशील हैं और हम सब आगे भी प्रयत्नशील होंगे। बहुत धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you very much. So, anybody else would like to say something? Good morning, Dr. Saab. Yeah. Good morning, ji. Sir, my question is, I'm from Dr. Sanjeev Garg from Sant Longowal Institute, sir. Ji. My question was, sir, that if we want to seek any support from the government sector, how we should approach, how a farmer should approach to the government to seek its support for the organic farming. Government. Yeah. Dr. Saab has already suggested that PAU system is working for organic farming. They are also helping the farmer in getting a training. Then further, all kind of inputs from where such inputs can be procured. That kind of a training is also given by this KVK and Punjab Agriculture University. So you have to go there, contact such people and get a training for your farmers. And after getting such training, they will be also given some guidance that how they can market their things. So ये दोनों ट्रेनिंग आपको मिलेगी। यूनिट बने हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट के भी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उसको आप अपने फार्मर्स को जोड़ सकते हैं। कभी एक्सपोजर विजिट्स के लिए ले जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए रोपड़ में आपके कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके माध्यम से आप जोड़ लीजिए, या फिर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए जलंधर में है, तो जलंधर में पास के यूनिट में, आपके पास लुधियाना तो कोई ज्यादा दूर है नहीं, तो वो जो सेंटर है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करिए।